Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine and your health is also very good. Take the best care of yourself as the summer season is now it's on bloom. और इसमें करना क्या है कि आपने खुद को गर्मी से बचाना है, लेकिन सब कामों से अहम काम जो है वो ये है कि यू आर गोइंग टू कंटिन्यू योर स्टडीज़ which are more important to you than anything else. Dear students, in your class 8, you need to learn your tenses, your grammar portion as well as your creative part should be very strong, as this is a bridge. When you will cross this bridge, this class, you will enter the very important part of your life, that is your matric level, and matric level decides what you are going to be, what you need to do in future. So before starting our lesson, these were a few pieces of advice which I wanted to share with you. Keep concentrating on your studies so that your time is not wasted, and keep noting down whatever is sent to you by online lectures. Today our class is based on chapter number 4, that is entitled with an exhibition. In this lesson you are going to learn about use of present perfect tense. My dear student, I have already told you that your class 8th English book is based on different tenses. Every lesson has got specifically a tense. There are more sentences related to that tense, and what you need to do, you need to underline them, recognize them, and then practice them. Definitely when you will be learning present perfect continuous tense, you will know about use of foreign tense and your perfect continuous tense. You will recognize and use new words, and you will identify and use articles. What are articles? They are basically adverbs a, an, and the. Okay, before starting our lesson, what we need to do, what is an exhibition? Exhibition क्या होती है? नुमाइश, a place where different things, collections are displayed. What do you see in the exhibition? You see different collections of different kind of things in the exhibition. And what is hobby? How do you define hobby? Hobby is something which you do in your spare time. So this was something that was related with an exhibition. Now we shall proceed towards our page number 20, that is based on the text material. Mr. Kazi was standing before his class. Mr. Kazi अपनी क्लास के सामने खड़े थे. Mr. Kazi asked, did you enjoy exhibition yesterday? क्या आप कल नुमाइश से लुत्फ़अंदोज़ हुए? All hands went up to say yes. तमाम हाथ हाँ के लिए खड़े हो गए. Good. अच्छा, said Mr. Kazi. What did you like best in the exhibition, अकबर? Exhibition में, नुमाइश में अकबर आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? अकबर stood up and said, I like painting the best. I like paintings the best. मुझे सबसे ज़्यादा मुसव्वरी की तस्वीरें पसंद आई या मुसव्वरी पसंद आई. सर दे लुक्ड सो ब्यूटीफुल. जनाब, सर, जनाब, दे लुक्ड सो ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी. वाई डिड यू लाइक पेंटिंग्स? तुम्हें मुसव्वरी या तस्वीरें क्यों पसंद आई अकबर? नो, वट इज़ अकबर टेलिंग? अकबर इज़ टेलिंग, पेंटिंग इज़ माई हॉबी एंड आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स ऑफ माई ओन. मुसव्वरी मेरा मशगला है. हॉबी इज़ समथिंग विच यू डू इन योर स्पेयर टाइम other than study or other than your job. So painting is my hobby and I have a good collection of paintings of my own. मेरे पास अपनी तस्वीरों का एक मजमुआ भी है. collection, मजमुआ. Now look at this question. What is Akbar's hobby? Akbar's hobby is painting या his hobby is painting is the right answer. You are going to write down the questions in the blog on your neat copy as soon as the lesson is completed. Then
रिजवान स्टूड अप नेक्स्ट, आई लाइक द रॉक्स बेस्ट। रिजवान उसके बाद खड़ा हुआ, उसने कहा मुझे पत्थर पसंद है। यू सी, आप जानते हैं, आई कलेक्ट रॉक्स टू, मैं भी पत्थर जमा करता हूँ। टू, मैं भी पत्थर जमा करता हूँ। नाउ द मेन पार्ट ऑफ योर लेसन, योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ ओवर हेयर। आई हैव बीन डूइंग सो सिंस माई चाइल्डहुड, मैं ऐसा अपने बचपन से करता रहा हूँ। इट इज़ माई हॉबी, ये मेरा मशगला है। बट द रॉक्स देयर आई हैड नेवर सीन बिफोर, लेकिन वो पत्थर जो वहाँ थे वो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। मिस्टर काजी अप्रिशिएटेड, मिस्टर काजी ने दाद दी। रिजवान रिस्पॉन्ड, रिजवान के रद्द अमल की रिस्पॉन्स, रद्द अमल की। द रीज़न इज़ दैट, इसकी वजह ये है, दैट द रॉक्स इन द एग्जीबिशन हैड कम फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि पत्थर जो कि नुमाइश से आए थे वो तमाम दुनिया से लाए गए थे। एंड द रॉक्स दैट यू हैव इन योर कलेक्शन, और वो पत्थर जो आपके मजमूए में थे, वर प्रोबेबली फाउंड नियर योर ओन हाउस, प्रोबेबली गालबन पाए जाते हैं, नियर योर ओन हाउस, तुम्हारे अपने घर के करीब। एवरीबडी इन द क्लास सेड वन थिंग और द अदर, हर किसी ने क्लास में कोई एक बात कही या दूसरी। बट वन बॉय सैट मम ऑल द टाइम, लेकिन एक लड़का तमाम वक्त खामोश रहा। ही हैड नॉट अटर्ड अ वर्ड ऑल दिस वाइल, उसने इस तमाम अरसे में, इस तमाम दौरानिए में एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था। अटर, निकालना या बोलना। वट इज़ रॉन्ग विद यू टुडे सलीम, सलीम तुम्हारे साथ आज क्या मसला है। सेड मिस्टर काजी टू दिस बॉय, मिस्टर काजी ने इस लड़के से कहा, यू हैव नॉट स्पोकन टुडे, तुम आज नहीं बोले। डिडंट यू लाइक एनीथिंग इन द एग्जीबिशन, क्या तुम्हें एग्जीबिशन में कोई चीज़ पसंद नहीं आई, क्या तुम्हें नुमाइश में कोई चीज़ पसंद नहीं आई। सलीम सर, सलीम ने कहा, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग स्टैम्प्स फॉर क्वाइट सम टाइम, आई हैव बीन कलेक्टिंग, योर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सर आई हैव बीन कलेक्टिंग स्टैम्प्स फॉर quite some time now, I didn't see stamps in the exhibition, तो मुझे नुमाइश में टिकटें दिखाई नहीं दी। My dear students, I have underlined a few words for you and some are not underlined, but which word you find new to you, you will learn it carefully during the lesson and then write it down on your neat copy in the form of word meanings. Now सलीम सर, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग स्टैम्प्स फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, मैं कुछ अरसे से अब तक टिकटें जमा करता रहा हूँ। एंड आई डिडंट सी स्टैम्प्स इन द एग्जीबिशन, मैंने ये टिकटें नुमाइश में नहीं देखी। मिस्टर काजी सेड, मिस्टर काजी ने कहा, येस, जी हाँ, यू आर राइट, आप ठीक कह रहे हैं। देयर वाज नो स्टॉल ऑफ स्टैम्प्स देयर, वहाँ पर टिकटों का कोई स्टॉल नहीं था। इट्स अ वेरी पॉपुलर हॉबी, ये बहुत मशहूर मशगला है, पॉपुलर मशहूर मशगला है। मिस्टर काजी सेड, मिस्टर काजी ने कहा, आई हैव सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ़ यू, मेरे पास अब सब लोगों के लिए एक बहुत मज़े की बात है। एवरीबडी लुक्ड एंक्शस, एंक्शस बेचैन, वैसे परेशानी की सेंस में भी इसका मीनिंग आता है, लेकिन इसको बेचैन की सेंस में भी ले सकते हैं। लेट्स हैव एन एग्जीबिशन एट स्कूल, आए स्कूल में एक नुमाइश रखते हैं। एंड लेट एवरीबडी ब्रिंग हिज ओन कलेक्शन, और हर कोई अपनी कलेक्शन, अपना मजमुआ नुमाइश में लेके आए। सलीम, यू विल ब्रिंग योर स्टैम्प, सलीम तुम अपनी टिकटें लाओगे। अब अगला ब्लॉक क्वेश्चन भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट वी मे प्रोसीड टूवर्ड पेज नंबर 21। वाई डिड मिस्टर काजी आस्क सलीम टू ब्रिंग हिज कलेक्शन ऑफ स्टैम्प, मिस्टर काजी आस्क्ड सलीम टू ब्रिंग हिज कलेक्शन ऑफ स्टैम्प सो दैट ही मे शो दैम इन हिज स्कूल एट द एग्जीबिशन। Now we will proceed toward page number 21. Will you, क्या तुम लाओगे? Yes sir, said Saleem, सलीम ने कहा। Mr. Kazi then asked the class if they had a hobby. Mr. Kazi ने क्लास के लड़कों से पूछा क्या आपका मशगला है। सदीक, सर I have been collecting picture of great leaders. जनाब, सर, जनाब, I had been collecting पिक्चर्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, मैं अजीम रहनुमाओं की, ग्रेट लीडर्स अजीम रहनुमाओं की तस्वीरें जमा करता रहा हूँ। आई विल ब्रिंग माई कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, मैं अपनी तस्वीरों का मजमुआ लाऊंगा। आसिफ, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग कॉइन्स, सर मैं सिक्के जमा करता रहा हूँ। आई विल ब्रिंग देम टू,
मैं भी उन्हें लाऊंगा या मैं उन्हें भी लाऊंगा। सम ऑफ दोज कॉइन्स आर वेरी रेयर, उनमें से कुछ सिक्के बहुत नायाब हैं। रेयर नायाब हैं। शेराज, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग पोस्ट कार्ड्स ऑफ द कंट्रीज़। जनाब मैं दूसरे ममालिक के पोस्ट कार्ड यानी कि ख़तों के लिफाफे जमा करता रहा हूँ। आई विल ब्रिंग दोज, मैं उन्हें लाऊंगा। असलम, आई हैव बीन कलेक्टिंग सी शेल्स। असलम जनाब मैं समंदरी घोंगे या समंदरी सीपियाँ जमा करता रहा हूँ। काशिफ, माई सिस्टर हैज़ अ बिग कलेक्शन ऑफ डोल्स। मेरी बहन के पास गुड़ियों का एक बड़ा मजमुआ है। शी हैज़ बीन कलेक्टिंग डोल्स फ्राम अदर कंट्रीज़। वो दूसरे ममालिक से गुड़िया जमा करती रही है। एंड हैज़ बीन मेकिंग डोल हरसेल्फ, और ख़ुद भी गुड़िया बनाती रही है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग सम ऑफ दोज डोल्स टू दिस एग्जीबिशन। मैं उनमें से कुछ गुड़िया इस नुमाइश में लाना चाहूँगा। नाउ हु वांट्स टू ब्रिंग द कलेक्शन ऑफ डोल्स फॉर स्कूल एग्जीबिशन? इट इज़ काशिफ. Kashif wants to bring the collection of dolls for school exhibition. मिस्टर काजी, इट अपीयर्स, ऐसा मालूम होता है, ऐसा दिखाई देता है, यू हैव ऑल बीन डूइंग अ गुड जॉब, तुम तमाम लोगों ने अच्छा काम किया। इट सीम्स ऑल सेट नो, अब तमाम सही हो चुका है। प्लीज़ ब्रिंग योर कलेक्शन टू स्कूल नेक्स्ट थर्सडे, अगली जुमेरात अपनी मजमूए स्कूल लाइए फॉर द एग्ज़िबिशन, नुमाइश के लिए। डोंट फॉरगेट, मत भूलिए, डोंट फॉरगेट मत भूलिए, टू इनवाइट, बुलाना, योर पेरेंट्स, अपने वालिदैन, रिलेटिव्स, रिश्तेदार, एंड फ्रेंड्स, और दोस्तों को, टू द एग्ज़िबिशन, नुमाइश में। द चिल्ड्रन वर सो एक्साइटेड टुडे, बच्चे आज बहुत ज़्यादा पुरजोश थे। दे ऑल क्लैप्ड, उन सब ने तालियाँ बजाई। दे लाइक द आइडिया ऑफ अ स्कूल एग्ज़िबिशन, उन्हें स्कूल का में नुमाइश का आइडिया या ख्याल पसंद आया। हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ एग्ज़िबिशन फॉर द स्टूडेंट? Who introduced? Mr. Kazi. Mr. Kazi is who? Mr. Kazi is the teacher of the classroom. Now, my dear students, you can see that your tense has been underlined for you on your pages. So, what you need to do? Try to learn the word meaning of underlined sentences and then write down in your notebook. I will repeat the meanings of the words which are new for you. Exhibition, नुमाइश, पेंटिंग, मुसव्वरी, रिस्पॉन्स, रद्द-ए-अमल, मम, खामोश, अटर्ड, लफ्ज़ नहीं बोला या निकाला, प्रोबेबली, शायद, एंक्शस, बेचैन, कलेक्शन, मजमुआ। On next page, great leaders, अजीम रहनुमा, coins, सिक्के, पोस्ट कार्ड्स, ख़तों के लिफाफे या खतूत के लिफाफे, सीशेल्स, समंदरी सिपियाँ, क्लैप, तालियाँ बजाईं, इनवाइट, दावत देना, सेट नाउ, ठीक हो जाना, सीन्स, महसूस होता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर लेसन। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू राइट डाउन द वर्ड मीनिंग्स of the underlined words on page number 20 and 21, plus you will write down the questions and their answers of these questions which are in block. 2 questions are on page number 21 and 2 are on page 20. Till then, Allah Hafiz. See you in the next lecture, inshallah. Assalamu alaikum.